Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class first year. Today we are going to discuss the ionization constant of water, that is Kw. Student, ऐसा है कि water is an amphoteric substance. It can act as an acid as well as a base. This was explained by Lowry and Bronsted concept of acids and bases. Similarly, water is self-ionizable या auto-ionizable. What is meant by self-ionization? Self-ionization means that if the molecule of a compound ionizes the other molecule of a compound, that is called self-ionization. या ऐसा कह सकते हैं कि if a compound acts as a solvent as well as a solute, that is called self-ionization or self-ionizable compound. Water is one of them. Water का एक molecule as an acid act करता है, जबकि दूसरा molecule as a base act करता है. ये दोनों interaction करके हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं. This is called the self-ionization of water. अब यहाँ पर हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O कंसंट्रेशन इनटू H2O कंसंट्रेशन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, चूंकि ये दो हैं तो H2O पावर 2 या H2O का स्क्वायर. हम जानते हैं कि H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये दरअसल इक्वल होता है हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन के. फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपली H पॉजिटिव आयन की सूरत में दिखा सकते हैं. तो हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, सिंपली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि H2O which is a liquid, it goes to hydrogen ions and यानी हाइड्रोजन आयन्स aqueous and hydroxide ion aqueous. And for this we can write Kc is equal to H positive concentration into OH negative concentration divided by H2O concentration at 25 degree C. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, तो प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील होता है. फिर इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एंड दिस इज डन एट 25 डिग्री C. अब सपोज करें कि वाटर जो है ये हम लेते हैं 1 लीटर. लेट सपोज कि वाटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर वाटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब है. तो इसमें वेट या मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स, दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. हमें पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर यानी H2O, this is equal to 18 grams per mole. Therefore, the moles of water in 1 decimeter cubes will be equal to mass of water divided by molar mass. Mass of water यहाँ पर 1000 grams के बराबर है, जबकि इसका मोलर मास 18 ग्राम्स पर मोल है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 55.5 मोल्स. इसका मतलब ये है कि अब हम लिख सकते हैं
कि वाटर जो है, concentration of water H2O, that is H2O concentration is equal to 55.5 moles per decimeter cubes. Similarly, Kc at 25 degree centigrade for H2O, this is calculated and this is measured, which is equal to 1.8 multiplied by 10 raised to power minus 16. Kc for water at 25 degree centigrade is equal to 1.8 multiplied by 10 raised to power minus 16. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. तो अब हम जानते हैं कि Kc is equal to H positive ions into OH negative ions divided by H2O concentration. So if we put these values, that is 1.8 multiplied by 10 raised to power minus 16 is equal to H positive concentration into OH negative concentration divided by 50.5 moles per decimeter cubes. तो इसका अब हम लिख सकते हैं, we can write H positive ions into OH negative ions is equal to 1.8 multiplied by 10 raised to power minus 16 multiplied by 55.5. इसका आंसर आता है 1 multiplied by 10 raised to power minus 14. Therefore, H positive concentration into OH negative concentration, it is equal to 10 raised to power minus 14. अब हम ये भी जानते हैं कि since H positive and OH negative ions, these are the ions generated from water, therefore H positive ions into OH negative ions, the product of these two is equal to ion product of water, and that is taken equal to Kw. In other words, हम ये कह सकते हैं कि अगर Kc हमारा इक्वल है H positive concentration into OH negative concentration divided by H2O, तो हम लिख सकते हैं कि Kc into H2O is equal to H positive ion into OH negative ions. अब Kc कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट लिया जाता है. ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि वाटर इज इन लिक्विड स्टेट और रूल्स के मुताबिक लिक्विड्स और सॉलिड्स का कंसंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं कि दैट रिमेन्स कांस्टेंट. तो अब Kc और H2O ये दो मुख्तलिफ कांस्टेंट्स हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है किस चीज़ के, Kw के, एंड Kw becomes equal to H positive into OH negative, and it is further equal to 1 multiplied by 10 raised to power minus 14. So this is the ionization constant of water which has been proved. इससे हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं pH and pOH of water at 25 degree centigrade. pH of water at 25 degree C. What is the pH of water at 25 degree centigrade? तो इसके लिए हम सबसे पहले definition of pH पढ़ते हैं. Definition of pH ये क्या है? ये कहते हैं कि pH is equal to negative log of hydrogen ions concentration. अच्छा,
what is the concentration of hydrogen ions in water at 25 degrees centigrade that can be obtained from? We know that Kw is equal to H positive into OH negative, which is equal to 1 into 10 raised to power minus 14. तो in water जब ये न्यूट्रल स्टेट में होता है, तो इन न्यूट्रल वाटर जब ये प्योर स्टेट में होता है, प्योर वाटर होता है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का नंबर या दोनों के मोल्स इक्वल होते हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव इनटू OH की जगह अब हम H पॉजिटिव लिख देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। यहाँ हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे, तो H positive concentration square root is equal to 1 multiplied by 10 raised to power minus 14 square root, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ जब हम 10 raised to power minus 14 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जो H कंसंट्रेशन है ये बराबर हो जाएगा 1 multiplied by 10 raised to power minus 7 के। So this is the concentration of hydrogen ions in water at 25 degree C. So put this value in the given equation of pH. So since pH is equal to negative logarithm of H positive, therefore negative logarithm of 10 रेज टू पावर माइनस 7, रूल्स के मुताबिक हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 7 लॉग ऑफ 10। हमें पता है कि लॉग ऑफ 10 1 होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए अब हम माइनस इंटू माइनस प्लस एंड दैट कम्स इक्वल टू 7। देयरफॉर इट इज सेड दैट न्यूट्रल वाटर और प्योर वाटर हैज pH इक्वल टू 7। सिमिलरली अब हम POH मालूम करेंगे कि व्हाट इज द POH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो POH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए है कि Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 14। In pure water at 25 degree centigrade, 25 degree C, the H positive ions are equal to OH negative concentration. Therefore we can write in place of H positive, अब हम लिख सकते हैं OH negative into OH negative, this is equal to 1 multiplied by 10 raised to power minus 14। इन दोनों का अब हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, 1 and 1 equal to 2, this is equal to 1 multiplied by 10 raised to power minus 14। अब हम लेंगे टेक अंडर रूट, तो OH नेगेटिव स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 का अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन रह जाएगा और अगर इसका रूट लिया जाए तो ये होगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 के। अब हम जानते हैं कि POH नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। पुट द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, रूल्स के मुताबिक माइनस इंटू माइनस 7 इंटू लॉग ऑफ 10। अब हमें पता है कि लॉग ऑफ 10
ये 1 के बराबर होता है, इसलिए POH विल बी इक्वल टू 7 ओनली। हम कह सकते हैं कि pH ऑफ वाटर remains 7 at 25 degrees centigrade. Similarly, the pOH of water is equal to 7 at 25 degree C. तो फाइनली हम एक फार्मूला लिखेंगे जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल हुआ करता है, और वो ये है कि pH and pOH, the sum of these two is equal to 7 plus 7, that is equal to always 14. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 14 की वैल्यू है ये मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ होगी या सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो 14 की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। सपोज कर लें कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, KW इज आल्सो हायर, क्योंकि वाटर ज़्यादा आयोनाइज हो जाता है। KW चूंकि ये बराबर है H पॉजिटिव आयंस इंटू OH नेगेटिव आयंस के, तो जब हम वाटर को ज़्यादा हीट देंगे तो हीट देने पर ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, और ज़्यादा आयोनाइज होने पर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द KW वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14 के। याद रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14, जबकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है और इट हैज बिकम 3.8 into 10 raised to power -14. So what will be the concentration of H positive at 40 degree centigrade? ये क्या होगा? उसके लिए है कि जिस तरह पहले हम करते रहे हैं, KW is equal to H positive into OH negative, इसी तरह से at एनी टेम्परेचर, हम ये कह सकते हैं कि एनी टेम्परेचर के ऊपर इन वाटर हमेशा जो है H पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल टू OH नेगेटिव। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू H पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14। हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14। अब हम टेक अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने से हम हासिल करेंगे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का अंडर रूट एंड 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14 का अंडर रूट। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन will be equal to 1.9 multiplied by 10 raised to power -14. This is 10 raised to power -7. This is the value of H positive at 40 degree centigrade. अब हम इस पर pH मालूम करेंगे कि what is the value of pH at 40 degree centigrade. तो pH is equal to negative log of H पॉजिटिव आयंस, यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7 लिया जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो द pH विल कम आउट इक्वल टू 6.71. दिस विल बी द pH ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली जिस तरह हमने ये मालूम किया है कि pH 6.71 होगा, इन द सेम केस pOH जो है दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 6.71। और अगर हम अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH एंड pOH का सम निकाल दें तो इसका जो सम होगा
pH प्लस POH का 840 degree centigrade. This will be equal to 6.71 plus 6.71, which comes equal to 2, 4 and 13. 13.42 will be the total of pH and POH at 40 degree centigrade. Thank you very much. This was all about the Kw of water, pH and POH. यानी हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि pH 7 के बराबर होता है या 7 से ज़्यादा होता है। अब हम एक और पॉइंट कर लेते हैं और वो ये है कि एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन। एसिड या एसिडिक बेस बिहेवियर ऑफ मुख्तलिफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। उसमें ये है कि सपोज इफ फॉर एग्जांपल pH इज ग्रेटर देन 7, then it will be basic. The substance will be basic. If for example the pH is lesser than 7, then it will be acidic. If for example pH is equal to 7, then the substance will be neutral होगा. Similarly, if for example POH this is greater than 7, the substance will be acidic. याद रखें यहाँ pH greater than 7 है तो बेसिक होगा, लेकिन अगर POH greater than 7 हो तो फिर acidic होगा। इसी तरह से अगर POH lesser than 7 हो तो फिर क्या होगा, ये बेसिक मटेरियल और बेसिक सॉल्यूशन होगा। और अगर POH इक्वल टू 7 होगा then it will be neutral. क्या होगा, न्यूट्रल। बट ऑल दीज थिंग्स आर 825 डिग्री C रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तरह का बिहेवियर होता है। हायर टेम्परेचर पे जो वैल्यूज हैं 7 से ऊपर या 7 से नीचे हो जाती हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ पूरी तरह से आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।